Welcome back students. We were dealing with the chapter Is Matter Around Us Pure? और इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कुछ कवर अप कर चुके हैं. लेट मी गिव यू अ क्विक रिविजन ऑफ दैट. First of all, we have dealt with the definition of the pure substances. Then we have done what are mixtures. Then we have done the types of mixtures. We actually dealt with the difference between colloid solutions and suspensions. In the last class, basically we dealt with that why do suspensions need to be shaken well before use? Why do the suspensions need to be shaken well before use? Then पिछली क्लास में हमने क्या किया था दैट व्हाट आर सॉल्यूशंस. बेसिकली सॉल्यूशंस की डेफिनेशन की थी. देन वी हैड डन विद व्हाट आर बाइनरी सॉल्यूशंस. बाइनरी सॉल्यूशंस की डेफिनेशन. देन वी हैड केम अप विद द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. Then we just had an introduction to the types of solution, different types of solution. आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? On different bases basically. आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स. उसके बाद वी आर गोइंग टू डील विद इन डिटेल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन एंड देन द रिलेशन ऑफ. सबसे पहले हम करने वाले हैं आज द types of solution on different states of solute and solvent. Then we are going to deal with the properties of solutions in detail. Then a detailed introduction about the saturated, unsaturated and supersaturated solutions once again in relation to volume, temperature and pressure. Okay, so this is what we are going to deal in today's topic, in today's class. So सबसे पहले आप सब स्टूडेंट्स को पता है that what is a solution. A solution is a homogeneous mixture of two substances जिसमें वो दोनों substances के properties हैं वो exhibit होती हैं. So let us start. Let us start. Yes. Okay. There are nine types of solutions.
based on difference of states of solute and solvent. 9 टाइप के सॉल्यूशंस हो जाते हैं जब हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ solute solvent लेते हैं. वो कैसे, वो आप अभी देखोगे. There are 9 types of solution based on states of solvent and solution. Solute and solvent. Let me write here again. Solute and solvent. Yes, there are 9 types of यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सॉल्वेंट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सॉल्यूट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सॉल्वेंट एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल्स. सो लेट अस राइट अबाउट दिस. 9 टाइप की कैसे हो सकती है? I am going to take it in a different way, that is solid, liquid, gas, and all the solvents will be solid. Then again to the topic with this classification. This is the solute, this is the solvent, and this is example. This is the solute, this is the solvent, and this is example. Here I am going to take solute again as solid, liquid and gas. And now the solvent would be liquid in all the cases. In the next category, I am again going to take solid, liquid and gas as the solute respectively. Solid, liquid and gas. These are the solutes, and now I am going to take the solvent, only the gas. That was all about. हमें 9 टाइप्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे. अब कैसे? सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूट, solid solvent, liquid solute, liquid, solid solvent, gaseous solute and solid solvent. These are the 3 cases, first 3 cases in which the solvent is always the solid but the solutes states vary from gaseous to solid. ठीक है. नेक्स्ट टाइम मैं ले रही हूँ लिक्विड को हमेशा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की जो है स्टेट्स वेरी करेंगी. सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड. दैट इज ऑल्सो डिफरेंट सॉल्यूशन. ये हो गई हमारी नेक्स्ट 3 टाइप्स, जो हो गई हमारी 6 टाइप्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई. नाउ अगेन मैंने क्या लिया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को सॉल्यूट लिया रिस्पेक्टिवली एंड गैस को सॉल्वेंट लिया है हमेशा. सो सॉलिड in gas, liquid in gas and gas in gas. Let us have the example now. Examples देख लेते हैं इसके. What will be the examples? Okay. Solid in solid. The solute is solid and the solvent is also solid. The solute is solid and solvent is also solid. The example is alloys. Alloys are the homogeneous mixtures of 2 or more metals and non-metals. ठीक है, 2 metals or 1 metal and 1 non-metal.
होमोजीनियस मिक्सचर है मतलब सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड ही हो, इट कैन बी गैसेस, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड. बट यहाँ पे एक पॉइंट लिखने वाला है, द लिक्विड सॉल्यूशन, ये तीनों, लेट मी टेक इट, लेट मी मार्क इट, बेसिकली मैं मार्क कर देती हूँ. ये वाला जो है, ऑल दीज थ्री जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, लिक्विड. इन सॉल्यूशंस की स्टेट लिक्विड होगी. एंड या दीज सॉल्यूशंस आर नोन एज एक्वियस सॉल्यूशंस. एक्वियस सॉल्यूशंस कौन सी सॉल्यूशंस होती हैं, द liquid solutions are also known as the aqueous solutions. These are the aqueous solutions. Okay. तो इसके एग्जाम्पल है alloys, एग्जाम्पल bronze, brass, steel. In any way you can use anything else also. The next case is solute is liquid, मतलब lesser जो amount है वो है liquid का, and जो ज़्यादा amount है that is of solid. Solid के अंदर liquid mixed है, वो क्या चीज़ हो सकती है? You can talk about water in the salt, yeah, we can talk about the humid salt, yeah, we can talk about the dental filling, amalgam, dental filling, amalgam dental filling हो गई. We can also write water in salt, water in salt. जब salt क्या करता है, water absorb कर लेता है, वो भी क्या बन जाती है, एक टाइप की homogeneous solution बन जाती है, because every salt molecule is having equal amount of water absorbed, but वो क्या होता है, सिर्फ surface के ऊपर ये solution बनता है, नीचे वाले particles के ऊपर solution बहुत कम जाता है. If that is packed है, तो अगर ओपन में पड़ा है salt, फिर हर पार्टिकल के ऊपर इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो डिपॉजिट होने वाले हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ऑफ solute is gas and solvent is solid. इसकी एग्जाम्पल क्या है? ओके, इन 11th क्लास बेसिकली यू आर गोइंग टू रीड मेनी हाइड्रोजन रिएक्शंस. तो इसकी एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑन द निकल सरफेस. ये एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है, दैट इज डिपॉजिटेड ऑन द निकल, दैट इज बेसिकली रिएक्टेड विद मेनी मेटल्स एंड बेसिकली द निकल. दैट इज द एग्जांपल ऑफ gas is the solute and solvent is the solid. Next thing we can talk about is solute is solid and solvent is liquid. Sugar solution, salt solution. Salt solution. Liquid in liquid, milk in water and alcohol in water. Then gas in liquid, aerated drinks. Aerated drinks, we can also say the soda water. इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेशराइज्ड एंड फिल्ड इनटू द एरिएटेड गैसेस, जिसकी वजह से वो फिजी एक शो करता है, फिजी अपीयरेंस, फिजी काइंड ऑफ प्रोसीजर शो करता है, जिसकी वजह से एरिएटेड ड्रिंक्स का वो टेस्ट है वो रिजर्व्ड रहता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड. इन दिस द सॉल्यूशन solute is carbon dioxide and water is the solvent along with flavors and taste. sugar तो होता ही होता है, flavors भी होते हैं उसमें, ठीक है. the next thing is solute is solid and solvent is gas.
आयोडीन इज अ काइंड ऑफ सबलाइम। जब आयोडीन क्या करता है, सब्लिमेट कर जाता है एयर के अंदर, तो वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे आयोडीन पड़ा है, इट इज गोइंग टू सब्लिमेट ड्यू टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर अगर हाई होगा मोर देन 25, तो वो आयोडीन क्या कर जाएगा, सब्लिमेट कर जाएगा, एंड अराउंड दिस प्लेस इट इज गोइंग टू फॉर्म अ होमोजीनस solution. If we cover this place, we can form a homogeneous solution of iodine in air. Thus, iodine is a solid and air is the solvent. Iodine in air, that वो naturally form हो जाता है already. So, the next thing is liquid in gas. Humid air. Humidity जो है basically हमारी गर्मियों के टाइम में या रेनी सीजन के टाइम में humid air, जो एयर में ह्यूमिडिटी है, वाटर है, वो कम होता है एंड एयर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी हमें फील होती है. इट इज़ नॉट लिक्विड, इट इज़ गैसियस ओनली. Okay, the next thing is gas and gas, and we can talk about air in this case. Air is the example of where the solute is also gas and the solvent is also gas. Now students, the one thing that you have been noticing कि जिस टाइप का सॉल्वेंट होता है बेसिकली उस स्टेट का ही सॉल्यूशन होता है. The solution can be solid, liquid or gaseous. Hence proved, on the basis of state, the solution are of three types: solid, liquid and gaseous. Okay? जिस टाइप का सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन का स्टेट भी उसी पे डिपेंड करेगा. Now let us talk about the next topic, that is the properties of solution. As we now can see that there are a lot of properties of the solution, and solutions are of many different types on different bases. ठीक है, तो basic properties of solution क्या होंगी? These are that first of all, first property is that solution is a homogeneous mixture. The particle size is less than 10 nanometer. The particles cannot be mechanically separated. The particles cannot be mechanically separated. अब आप ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो लगा के देखो कि जो पहले हमने सारे काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस किए थे उस पे ये प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है. ऑफ कोर्स दे आर एप्लीकेबल टू दोज एग्जाम्पल्स. द नेक्स्ट थिंग इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास through the filter paper. The particles of the solution pass through the filter paper. Solution is a mixture of the properties of its constituent particles.
and the last point is do not show Tyndall effect. The particles of the solution do not show the Tyndall effect. अब देखो homogeneous mixture. Homogeneous mixture is the first part. We can take an example of solid, liquid and gaseous. Let us talk about the bronze, the air particles, and we can talk about is aerated drinks. हम 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं एंड सभी प्रॉपर्टीज को इन तीनों पे लगा के देखते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज इन पे लग रही हैं, एप्लीकेबल हो रही हैं या नहीं. होमोजीनियस मिक्सचर, यस. Bronze is a homogeneous mixture, air is a homogeneous mixture, aerated drinks are also homogeneous mixture. ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक पार्ट ऊपर है जो वहाँ पे gaseous and sugar and flavor ज़्यादा है, नीचे flavor ज़्यादा नहीं है. No, that is a homogeneous mixture. The particles cannot be seen. The particles are less than 10 nanometer. 10 nanometer means cannot be seen with naked eyes. The particles cannot be seen with the naked eye. The particle cannot be mechanically separated. आप aerated drink के particles को देख सकते हो? नहीं देख सकते. एयर के पार्टिकल्स को देख सकते हो? नहीं देख सकते. आपके पास एक ब्रॉन्ज का एलॉय है. कैन यू सी द पार्टिकल्स? कैन यू सी द कॉपर एंड द टिन पार्टिकल्स सेपरेटली? नो, यू कैन नॉट सी इट. कैन यू सेपरेट द पार्टिकल्स? नो. अगर मैं आपको एक एरिएटेड ड्रिंक दे दूं या फिर मैं कहूँ कि हवा में से नाइट्रोजन को अलग कर दो, ऑक्सीजन को अलग कर दो, कैन यू डू दिस? नो, यू कैन नॉट डू दिस. बट यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन की हेल्प से ये हो जाएगा, मैकेनिकली नहीं हो पाएगा. जो एरिएटेड ड्रिंक्स का सेपरेशन है वो भी मैकेनिकली नहीं हो पाएगा. ओके. द पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर. आप एरिएटेड ड्रिंक्स को फिल्टर कर लो, उसमें से क्या है, सारे पार्टिकल्स जो है पास आउट हो जाएंगे. ब्रॉन्ज इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, अगर ब्रॉन्ज को आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करोगे और फिर उसको फिल्टर पेपर से पास करोगे तो ब्रॉन्ज के पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएंगे. सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर of the properties of its constituent particles. Of course, aerated drinks है, उसमें जो है fizz भी होती है. That fizz is because of the air present in the solution. एयर के अंदर भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसकी वजह से प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, हम ब्रीथ कर पाते हैं. सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट. ब्रॉन्ज के अंदर भी कॉपर की भी प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉपर. एंड टिन की भी प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम टिन. एंड इट मेक्स अप अ न्यू थिंग, न्यू सब्सटेंस बेसिकली, दैट इज नोन एज द एलॉय. ओके. दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट के बारे में हम आगे करने वाले हैं. बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. सॉल्यूशन के पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते. ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, दैट इज ड्यू टू द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूशन. पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज नैनोमीटर? पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, आप उसको मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा जो माइक्रो टर्म यूज़ करते हैं फॉर द मेंशनिंग ऑफ द पार्टिकल साइज. बेसिकली 10 नैनोमीटर क्या होता है? 10 नैनोमीटर इज 10 raised to minus 10 meter. 10 raised to power of minus 10 meter. This is 10 nanometer. Basically 1 nanometer is 10 raised to power 10 raised to power minus 10 meter. 1 micrometer is equals to 10 raised to power minus 6 meter. एंड अगर हमें बात करनी है
ओके, वेल दैट्स ऑल अबाउट द पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज बेसिकली यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं. अगर इससे भी डाउन जाऊंगी मैं तो देन दैट विल बी द more micro term used for the smaller, even smaller particles, that is equal to the atom size. That was all about the particle size. ये जो भी properties की solution की properties हैं, that is due to its particle size. पार्टिकल साइज होने की वजह से ही वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं वो कहीं भी मूव कर जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. उसकी वजह से हम नेकेड पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर में से भी पास आउट हो जाता है. सारी जो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, दैट इज ड्यू टू द पार्टिकल साइज ओनली. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन saturation and temperature. Saturation is basically inversely proportional to temperature. Saturation is basically inversely proportional to temperature. Suppose करो कि मेरे पास क्या है, cold water. This is 100 milliliter of cold water, that is 10 degree Celsius. इसकी जो saturation point आ जाएगी वो आ जाएगी 15 ग्राम of sugar. Next मेरे पास है बीकर में 100 milliliter of 29 degree Celsius water. इसका जो saturation point है that is of 20 ग्राम of sugar. इसका जो saturation point है 20 ग्राम ऑफ शुगर में है, मतलब saturation point बढ़ गया ना, saturation बढ़ गया. अभी मेरे पास जो पानी है that is of near about 70 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. यहाँ पे अगर हम बात करें saturation क्या आएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, 50 ग्राम ऑफ शुगर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी लेट क्या आएगी, सैचुरेशन आएगी. सपोज करो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी में आप चीनी घोल रहे हो, वो नहीं घुल रही है, तो पानी को हीट कर लो, हीटेड वाटर में वो चीनी आराम से घुल जाएगी. इसीलिए जब भी आप ठंडे पानी में कुछ भी मिक्स करने की कोशिश करते हो वो मिक्स नहीं होता है, बिकॉज ठंडे पानी में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोज एंड उनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, तो इतनी इजीली मूव नहीं करते हैं. रूम टेम्परेचर पे थोड़े ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एंड हीटेड वाटर में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स इधर उधर आराम से मूव कर सकते हैं एंड जो सैचुरेशन है वो लेट आती है. ओके, नाउ सेम इज द थिंग ऑफ प्रेशर. प्रेशर इंक्रीज कर दें, सपोज करो वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, तब भी सैचुरेशन क्या है, लेट आती है. मुझे क्या करना है, ये गैसेस पे लागू होता है बेसिकली, जो प्रेशर वाली चीज़ है दैट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ गैसेस. सपोज करो दिस इज आई एम हैविंग दिस इज वाटर, 10 ग्राम ऑफ वाटर, इसके अंदर 1 ग्राम ऑफ शुगर है. अगर इस पे प्रेशर लगाए जाओगे जो पार्टिकल्स हैं वो चले जाएंगे. जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स जाएंगे. So that's why saturation is inversely proportional to pressure also. And the next thing is, of course, suppose करो आपके पास एक solution है, उसमें क्या है, saturation reach कर गई. 100 milliliter of water at 70 degree Celsius, 50 ग्राम ऑफ शुगर पे उसकी saturation हो गई है. तो अब आप ऐसा करो 10 ग्राम ऑफ वाटर और डाल दो, 10 ग्राम ऑफ हीटेड वाटर ही डालना है, तो फिर क्या होगी, उसकी सैचुरेशन फिर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी. तो सैचुरेशन इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. सो सैचुरेशन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ा दोगे सैचुरेशन नहीं आएगी, प्रेशर बढ़ा दोगे सैचुरेशन नहीं आएगी, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी सैचुरेशन नहीं आएगी. दैट इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी. इसी वजह से द थिंग दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस
उसकी हम बात करते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर. नॉर्मली वी टेक 25 डिग्री सेल्सियस एज टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल. अगर बाकी हो सकता है सैचुरेशन ऑफ प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकती हैं. So that was all about today's topic. Thank you so much for watching. I hope you liked it. And next we are going to start with the concentration of solutions. So next topic will be concentration of solution. Till then, good luck and have a nice day. Thank you.